We really thank the Lord for these precious days God has given to us. हम वास्तव में प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इन मूल्यवान दिनों के लिए जो उसने हमें दिए हैं। One thing I would like to share right at the beginning is और एक चीज जो कि शुरुआत में ही मैं बांटना चाहता हूं वो ये है, these are very serious times for God's true people. परमेश्वर के सच्चे लोगों के लिए ये बहुत ही गंभीर समय है। One of the things the Lord repeatedly brought before the house of Israel in his day was और इस्राएल के घराने के सामने उन दिनों में परमेश्वर ने बार बार एक चीज को दोहराया, वो ये था, even in the days of the Lord Jesus Christ, और प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी it was this, वो ये चीज थी that they failed to understand their times. कि वो अपने समय को समझने में नाकाम रहे। Yes. And saints of God, we got to be reminded again and again of the times in which we are. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें बार बार इस बात का स्मरण कराना है कि हमें उस समय को समझना है जो कि जिसमें हम हैं। The Lord would want us to know that we are at the end times. और प्रभु ये चाहता है कि हम जाने कि हम अंतिम समय में हैं। And that God has a peculiar work at such times. और ऐसे समय के अंदर परमेश्वर के पास एक विशेष कार्य है करने के लिए। He has peculiar work. He has a peculiar work to be done in his people and through his people. उसके पास एक विशेष कार्य है जो उसके लोगों में और उसके लोगों के द्वारा पूरा किया जा सके। And if we would look at the workings of God in the scriptures, और यदि हम वचन में परमेश्वर के कार्यों को देखें and also in the history of God's people, और परमेश्वर के लोगों के इतिहास के अंदर भी, things become very strange in those moments and times. तो उन क्षणों और समयों के अंदर हम देखते हैं कि चीजें बहुत ही अजीब सा रूप ले लेती हैं। Things not only become strange, but also they become difficult in those times. और ना केवल वो वस्तुएं अजीब बन जाती परंतु बहुत ही कठिन भी बन जाती उन समयों के अंदर। Everything seems to be thrown into a state of disturbance. और प्रत्येक वस्तु जो है ऐसा लगता है कि असमंजस में फेंक दी गई है। Into a state of upheavals. और अपीलों की उस Upheaval, फेंक दी गई। upheaval, I don't know what to say. Trouble. हाँ, कष्ट के और परेशानी में डाल दी गई है। Times will be times of intense pressure. और वो बहुत ही दबाव के अंदर समय में आ जाती Those है। times would be times of great conflicts. और वो समय जो होंगे बहुत ही संघर्ष वाले होंगे। So we need to know, saints of God, that these are serious times in which we are, even according to God's own calendar. तो परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार हमने इस बात को जान लेना है कि इस वर्तमान समय में हम बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं। These are serious and critical times, therefore. और ये बहुत ही गंभीर और नाजुक समय है। And not only that, और ना केवल वो ही, we see several things even in the realm of the spiritual forces. और हम देखते हैं कि बहुत सी वस्तुएं जो है वो आत्मिक शक्तियों के हाथों में हैं। Great conflicts in the realm of the spirit. और बहुत ही संघर्ष हो रहा है उस आत्मा के वातावरण में। The spiritual powers and forces intensely coming upon that which is of God. और वो आत्मिक शक्तियां जो हैं वो बहुत जोर से परमेश्वर की वस्तुओं के ऊपर आ रही हैं। That which is of God, वो जो परमेश्वर की हैं, and upon that which would account unto God. और वो जो के परमेश्वर से संबंधित होंगी।
That would mean people like you and me. और जिसका अर्थ है वो लोग जैसे आप और मैं हैं। You know, the Lord has in His mercy, brought us in line with His will and purpose. परमेश्वर ने अपनी दया और कृपा में आपको और मेरे को उसके उद्देश्यों और योजनाओं में लाया है। And as we stand accounted to His purpose or connected to His purpose in this hour, और जब कि हम यहाँ पर खड़े हैं कि हम उसके वर्तमान समय के उस उद्देश्यों में लाए जाएं और हम उसका लेखा दें, we become even the objects of this great battle. तो हम इस बहुत बड़े युद्ध के एक उद्देश्य भी बन जाते हैं। So these are times we need to be very serious in our own lives, individually and corporately. और इसलिए ये वो समय आ चुका है कि हम संगठित रूप से और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही गंभीर बन जाएं। Yes. When we would say that we want to be part of God's purpose and His workings in the earth, और जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के उन योजनाओं में और उसके कार्यों में इस पृथ्वी पर होना चाहते हैं, surely it means we need to take on great, we need to be serious in these days. तो हमें विश्वसनीय रूप से बहुत ही गंभीर इन दिनों में बन जाना चाहिए। It talks about a seriousness in our individual lives. और जिसका अर्थ यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवनों में एक गंभीरता आनी चाहिए। And may the Lord help us therefore, और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे that we would be as serious people in this hour, कि इस वर्तमान समय में हम बहुत ही गंभीर लोग होंगे, being aware of the time in which we are. और हम उस समय से सतर्क रहेंगे जिसमें कि हम जी रहे हैं। Therefore, in these times, और इसलिए इन समयों के अंदर we need to be a people who are spiritually intelligent. हम ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आत्मिक रूप से बहुत ही होशियार और तेज हो। Spiritually intelligent enough in these days. और हमारे अंदर आत्मिक समझ इन दिनों में होनी चाहिए, Knowing that the enemy will work in numerous ways. ये जानते हुए कि शत्रु अनेकों रूप से अपना कार्य करेगा। Yes. That we stand on the ground unto which the Lord has brought us. कि हम उस भूमि पर खड़े हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें लाया है। The enemy's efforts are to paralyze his people. और शत्रु का यही प्रयास है कि वो अपने लोगों को निष्क्रिय कर दे, Bring pressure upon his people और उसके लोगों के ऊपर एक दबाव डाले and cause them to give up. और उनको ऐसा बना दे कि वो छोड़ने को तैयार हो जाएं, Cause them to lose their grip on that which the Lord has, unto that which the Lord has brought us. और जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और लाया है उस पर हमारी पकड़ ढीली हो जाए। Yes. Oh, we need to be spiritually intelligent in these days. और इसलिए हमें चाहिए कि आत्मिक रूप से हम बहुत ही समझदार इन दिनों में बन जाएं। We cannot give ourselves to logic and reason, saints of God. और हम इन दिनों में कारणों को और बुद्धिमत्ता के लिए अपने आप को नहीं दे सकते। It is time to stick on with the Spirit of God. और ये समय है कि हम परमेश्वर की आत्मा से चिपके रहें, Heavily leaning upon the Lord, we need to walk in these days. और पूरी रीति से प्रभु पर निर्भर होकर इन दिनों में हमें चलना चाहिए। Yes. And may the Lord help us. और इसके लिए प्रभु हमारी सहायता करे। As we shared with us, और जैसे हमने बतलाया, God does a peculiar work at such times. ऐसे समय के अंदर परमेश्वर एक विशेष कार्य करता है। God does not abandon his work despite all the upheavals the enemy will bring. और जितनी भी परेशानियां और कठिनाइयां शत्रु लाएगा उसके बावजूद परमेश्वर अपने कार्य को रोकेगा नहीं। Yes. God goes on with his work. परमेश्वर अपने कार्य को लेकर आगे बढ़ता रहता है। God takes up his work
परमेश्वर अपने कार्य को लेकर चलता in a है particular and peculiar way with his own. और अपने ही तरीके से अपनी ही इच्छा के अनुसार He is all the more at work. वो सदा ही कार्य पर लगा हुआ है And that constitutes a real reason for our gathering together in these days. और इसी कारण से वो एक वास्तविक कारण बना देता है कि हम यहाँ पर इन दिनों में क्यों एकत्र हैं। Now listen carefully, saints of God. सावधानी से सुने परमेश्वर के प्रिय लोगों, That constitutes a real reason for our coming together. और वो एक मुख्य कारण बन जाता है कि हम यहाँ पर उसी लिए एकत्र हुए हैं। You know, God takes up his work and he continues on his work in a particular and peculiar way with his remnant even in these times. परमेश्वर अपने कार्यों को लेकर एक विशेष उसकी अपनी ही इच्छा और योजना के अनुसार अपने विशेष लोगों के साथ चलता है He is all the more at work. और सदा ही वो अपने कार्य में व्यस्त है And that is the reason, and that is the real reason that we have come together in this place. और वही वास्तविक कारण है कि हम इस स्थान में एकत्र हुए हैं We have not come together here just as a routine camp meeting. और यहाँ पर अपनी रूटीन कैंप मीटिंग के अनुसार हम यहाँ पर नहीं हैं Not another yearly coming together of the saints. और ना ही यहाँ पर वार्षिक एकत्र होना लोगों का But it is a serious and a solemn time for his remnant saints of God. परंतु ये बहुत ही गंभीर एक समय है परमेश्वर के लोगों के लिए कि वो A एकत्र solemn हुए हैं। time एक बहुत ही गंभीर समय है around the Lord, प्रभु के पास एकत्र हुए coming हैं before him together और उसके सम्मुख एकत्र हुए हैं एक with साथ। an intense longing to hear his voice. और एक बड़ी तीव्र इच्छा के साथ कि उसकी आवाज को सुने Not to take back a few new thoughts with us, और इसलिए नहीं कि कुछ नए विचारों को लेकर हम यहाँ से not to जाएं take back with us a few new things from God's word that would just inspire us from time to time, और ना इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन से कोई नए विचारों को और योजनाओं को लेकर जाएं जो समय समय पर हमें प्रेरणा दें but to know the crucial time in which we are परंतु हम जाने उस नाजुक समय को जिसमें हम रह रहे हैं and his need in this hour, और उसकी आवश्यकता इस वर्तमान समय के लिए the times in which we are living, और जिस समय में हम रह रहे हैं and what the warnings are and the signs are for these times. और इन समयों के लिए कौन सी चेतावनियां हैं और कौन से चिन्ह हैं What are the ways he would work in his people in these days? और कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर अपने लोगों में कार्य What he करेगा desires of his vessels in this hour. और अपने पात्रों से वो इस वर्तमान समय में क्या इच्छा करता है What he is after for in his remnant in this hour. और अपने बचे हुए लोगों के अंदर वो किस चीज की खोज में What he है intends to do in us and through us and also in these last days. और इन अंतिम दिनों में वो हमारे भीतर और हमारे द्वारा क्या करना चाहता है Yes. This constitutes the reason for our coming together, saints. और यही उस कारण को बनाता है जो हमारे यहाँ पर एकत्र होने का है It's therefore crucial. और इसलिए बहुत नाजुक है It is related to his need. क्योंकि ये उसकी आवश्यकता से संबंधित है And it is of tremendous importance to him. और ये उसके लिए एक महत्व रखता है And it is of tremendous importance to him. और उसके लिए एक अद्भुत महत्वपूर्ण वस्तु है And may God help us to understand this. और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता That करे we कि haven't हम- come together for just a good time of fellowship together with the saints. और हम यहाँ पर इसलिए नहीं एकत्र हुए हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के साथ एक अच्छा समय बिताया जाए Yes, surely God is preparing his remnant in this hour. और विश्वसनीय रूप से परमेश्वर अपने लिए एक बचे हुए लोगों को तैयार कर As the रहा Lord है spoke to us in the leaders' conference or gatherings, और जिस प्रकार से लीडर्स मीटिंग में परमेश्वर ने हमसे बात की the Lord is preparing his vessels in this hour. परमेश्वर अपने पात्रों को इन दिनों में तैयार कर रहा He is है preparing the vessels of recovery. और वो बहाली के पात्रों को तैयार कर रहा है And he is doing it according to his own thoughts and intentions. और ये कार्य वो अपने विचारों और अपने निर्णयों के साथ कर रहा है Nonetheless, the Lord counts upon our will and our cooperation. और इसके बावजूद कि परमेश्वर हमारी
सहयोग और हमारी इच्छा के अनुसार भी कार्य We कर need रहा to है। know one thing very clearly. और हमें एक चीज स्पष्टता से जान लेनी है, God will never force himself on anybody. परमेश्वर जबरदस्ती अपने आप को किसी पर नहीं लाता। Yes. He is not going to drag any one of us into the things that he holds for his people. वो किसी को भी घसीट कर अपनी उन वस्तुओं में नहीं लाना चाहता जो उसने अपने लोगों के लिए रखी हैं। Yes, God is doing and he desires to do everything according to his thoughts and his will. परमेश्वर His अपना intentions. कार्य कर रहा है और वो प्रत्येक वस्तु को अपने ही इरादे, अपने निर्णय और इच्छा के अनुसार करता है। Nonetheless, the Lord counts upon our will and our cooperation in these days. और फिर भी प्रभु हमारे इच्छा और हमारे सहयोग पर भी निर्भर है इन दिनों में। And the Lord, as I was waiting on over a period of time, the Lord began to speak several things from his word. और जब कि मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा और रुका हुआ था तो कई चीजों की बात प्रभु ने बतलाई। As I said, God is preparing and positioning his remnant for his work in the earth. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, उनको बना रहा है कि वो उसके कार्य को पूरा करे इस पृथ्वी। Turn with me to the book of Jeremiah. यिर्मयाह की पुस्तक, And we would turn to the book of Jeremiah and chapter 18. उसका 18वां पद। The Lord is surely preparing his vessels. परमेश्वर निस्संदेह अपने पात्रों को तैयार He कर is रहा है preparing his vessels of recovery. और वो अपने बहाली के पात्रों को तैयार कर रहा And he is है doing it according to his own thoughts and intentions. और इस कार्य को वो अपने ही विचारों के अनुसार और अपने इरादे से कर रहा है। And may the Lord help us to keep our lives open in these days. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों को इन दिनों में खुला And रखें। as many as have come here with a real longing to meet with God and be changed, we will be changed. और जितने भी यहाँ पर एक बड़ी तीव्र इच्छा को लेकर आए हैं कि वो परमेश्वर से भेंट करेंगे और परिवर्तन उनके जीवनों में होगा, वो अवश्य परिवर्तित होंगे। So may we be a people of preparation और इसलिए हम एक तैयारियों के लोग बने and a people of depths. और एक गहराइयों के लोग बने You know, a people stretching themselves. और वो लोग जो अपने आप को खोल दें, फैला You know, दें stretching us all the way और अपने आप को खोल दें to make sure nothing falls outside of us. और ये देखें कि कोई भी चीज हमसे बाहर जाकर न गिरे। Are people whose hearts are enlarged towards God. और जिनके हृदय परमेश्वर के लिए बड़े और खुले हुए हैं। Amen. And I'm sure God will not fail you. और मेरा विश्वास है कि Fail me. परमेश्वर कभी Fail भी us. इसको The हमें book नाकाम of नहीं होने Jeremiah and chapter 18. देगा। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 18वां अध्याय। The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my words. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the vessels, or on the wheels, sorry. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again another vessel, as seemed good to the potter to make it. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Saith the Lord, Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Please wait. परमेश्वर का वचन यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। Amen. तब मैं कुम्हार के घर गया और देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब परमेश्वर का वचन उस पर नाजिल हुआ कि हे इस्राएल के घराने,
Amen. नहीं, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूं? परमेश्वर ने कहा, देखो, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथों में है, उसी तरह इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। I have read these portions many number of times, और मैंने इन वचनों को कई बार पढ़ा है shared several thoughts from it. और इनसे कई विचार भी बांटे हैं। And even as I was away from here, परंतु जब मैं यहाँ से बाहर था and I was lying one night, not getting real sleep, और एक रात में लेटा हुआ था और मुझे and I began to नींद नहीं आ read रही the थी, scripture, और मैं इन वचनों को पढ़ने लगा, and the Lord brought me to this portion and began to minister in a new way. और प्रभु ने मेरे को इन्हीं वचनों में लाकर एक नए रूप से मुझसे बात It करनी really शुरू की, began to bring an impact upon my being. और मेरे व्यक्तित्व पर एक उसने बड़ा दबाव डाला। And I really do not know how the Lord is going to lead us and help us to bring about these thoughts to us. और मैं नहीं जानता किस प्रकार से प्रभु हमारी अगुवाई करेगा कि हम इन विचारों को बांट But सकें। I certainly believe there is some... Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord,